Did you, Ashish? Yes, sir. No, 2 weeks back, during the announcement, I said all of you should come on videos. 2 हफ्ते पहले मैंने जब अनाउंसमेंट्स किए थे तो मैंने कहा था कि आप सब जो है वो वीडियो पे अवश्य आएं। All came on video. Most of you were on video. और फिर आप में से अधिकतर लोग वीडियो पे आ भी गए थे। No, after the service, someone said, yeah, there will be. No, somebody asked me. You as soon as you said everyone came on the video. और फिर सर्विस के बाद मुझसे किसी ने कहा कि क्या सब वीडियो पे आए। I said, yeah, for 2 weeks they will come again. They will go back. मैंने कहा कि हाँ 2 हफ्ते के लिए आएंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। That's what is happening again. और फिर से वही हो रहा है। Please be on video because it's a service. It is not some seminar you attend. It's a church service that you attend. We should be able to see each other, and the preacher, the person who is praying for you at preaching, should be able to see your faces. And I'm going to ask one question during the service. I want you to raise your hands and give answers to that question. तो मैं चाहूंगा फिर से, क्योंकि ये एक प्रचार है, चर्च सभा है, इसलिए आप लोग वीडियो पर रहिए। कोई सेमिनार नहीं है और आवश्यक है कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको प्रचार कर रहे हैं, तो हम देखें किसको प्रचार कर रहे हैं और आप भी प्रचारक को देख सकते हैं। और मैं आज सर्विस में भी एक सवाल पूछूंगा बीच में और मैं चाहूंगा कि आप अपना हाथ उठा के उसका जवाब दें। Yeah. In 1835, there was a person in Italy. He went to a doctor. 1835 में इटली में एक व्यक्ति था जो एक डॉक्टर के पास गया। He was filled with anxiety. और उसके अंदर बहुत ही उसका जी मचला रहा था, घबरा रहा था। Exhausted from lack of sleep. और नींद की कमी से वो थका हुआ था। He was not able to eat well and avoided his friends as well. ठीक से खा भी नहीं पा रहा था, अपने दोस्तों से वो बच रहा था। So the doctor examined his physical body. तो डॉक्टर ने उसकी जांच करी, उसके शरीर की। And he found it be really in very good condition, very good physical condition. और ये पाया कि शारीरिक रूप से तो बहुत अच्छी स्थिति में है। And then doctor found him to be very sad inside. Within his heart, he was not really keeping okay. तो डॉक्टर ने देखा कि अंदर से अपने हृदय में वो बड़ा उदास था, अंदर से वो ठीक नहीं था। So he told him, तो उससे कहा, there is a circus, new circus has come into our town. कहा कि एक सर्कस आया हुआ है शहर में। In that circus, there is a clown, the world famous clown, most funniest clown in the world. तो कहा कि वहां पे सर्कस में जो है एक जोकर है और वो बड़ा अजीब सा है, हंसाने वाला है। People who go there really enjoy themselves looking at that man. और जब वो जाके उस जोकर को देखते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। He makes everyone laugh and enjoy themselves in the circus. और वो सबको हंसाता भी है और सबका बड़ा मनोरंजन होता है वहां पे। His name is Guy Maldi. और गाय माल्डी उसका नाम है। And you also go to the circus and you will be very happy. You will come out of your sadness or whatever discouragement that you are going through. और कहा कि तुम भी सर्कस में जाओ, देखो तुम भी खुश होकर निकलोगे और जो भी तुम बातें तुम्हें व्याकुल कर रही हैं वो सब चली जाएंगी। The man said, no doctor, he cannot do it. तो उसने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं कर सकता। He said, you see, I am Guy Maldi. और उसने कहा, देखिए मैं ही हूँ वो व्यक्ति, ग्रे मनाल्डी। I am the one who makes everyone happy there. मैं ही हूँ जो सबको वहां पे हंसाता हूँ। No, when you go through scriptures, जब हम वचन में देखते हैं। okay, let me ask this question that I wanted to ask you. How many of you really like cold meat? No cold meat? ठंडा मांसाहारी किसको पसंद है? Yeah, have you ever eaten? No, nobody has eaten. Yeah, Java is a very good recharge. Everyone is. You all like it, no? You all like it. Yeah, Anu also is raising her hand because her brother makes it. If you don't know what it is, ask Jabba. She makes very nice cold meat. अगर आपको नहीं मालूम कि ये क्या होता है तो आप जबा से पूछ सकते हैं। कोल्ड ठंडा मीट, ठंडा मांस क्या होता है? Cold meat, you prepare chunk of meat with lot of preservatives. I don't know how she does it, but put it in the fridge. तो उसमें बहुत से मसाले वगैरह लगा करके, और मैं नहीं जानता जबा कैसे करती है, लेकिन फिर उसको फ्रिज में डाल देते हैं। So whenever you need, you take it, thaw it little bit, and eat it fresh.
और जब भी खाने का मन करे तो निकालिए, काटिए और थोड़ा सा फ्राई करके खा सकते हैं। Okay, today that's what I am going to feed you. और यही आज मैं आपको देने वाला हूँ। The message I am preaching to you, I preached in September 2017. ये मैंने सितंबर 2017 में प्रचार किया था I took it out a little bit and I'm presenting it today और मैं इसको निकाल के थोड़ा सा तल के आपको आज फिर से दूंगा, because I didn't have time to, because of my health, I was not able to finish the message I was preparing. क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण जो संदेश मैं तैयार कर रहा था उसको मैं पूरा नहीं कर पाया था इसलिए। But one of the benefit is we all have a memory, very short memory of any message that is preached. लेकिन एक बात है कि कोई भी जब संदेश प्रचार किया जाता है तो हमारा जो याददाश्त है वो बहुत छोटी होती है। So sometimes it is better for ourselves to remind ourselves of the same sermon once again. और कभी कभी अच्छा होता है कि अपने आप को हम दोबारा याद दिलाएं, जो संदेश हमने पहले कभी सुना होगा उसको अपने आप को याद दिलाएं। So when you go through the scriptures, तो जब हम वचन में से गुजरते हैं you find there are so many people who went through discouragement and depressions. तो हम देखते हैं कितने सारे लोग थे जो ऐसे परिस्थितियों से गुजरे जिससे वो बहुत व्याकुल थे और बहुत ही ज्यादा खोए हुए थे, परेशान थे। Now Job went through the discouragement, depression. और जो अय्यूब था वो उन परिस्थितियों से गुजरा। He was so depressed, he said, my days will come to an end without hope. और उसने व्याकुल परेशान होते हुए कहा कि जो मेरे दिन हैं वो बगैर किसी आशा के अंत हो जाएंगे। When then Moses was going through, when he was leading those 1 million, about 10 lakh people through the desert. और मूसा के साथ भी यही हुआ जब वो इतने लाखों लोगों को वो उस रेगिस्तान से लेके जा रहा था। He had to take care of all those people उसको उन सबका ख्याल रखना था and he had to sit as a judge over them, और एक न्यायाधीश के रूप में भी वहां पे उसको कार्य करना था। teach them the law of God. परमेश्वर का उसको परमेश्वर की व्यवस्था उसको सिखानी थी The लोगों को। people were not listening to him, always turning against God. पर लोग जो थे वो सुन नहीं रहे थे, हमेशा परमेश्वर के विरोध में जा रहे थे। They rebelled against God and rebelled against him also. परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में लोग बगावत कर रहे थे। He was so discouraged and depressed, he said. और इतना ज्यादा व्याकुल और दुखी वो हो गया था कि He उसने told the कहा, Lord, if this is how that you are going to treat me, please take my life right away. उसने कहा कि हे परमेश्वर, अगर इस प्रकार से ये सब चीजें मेरे जीवन में होनी है तो फिर आप मेरा जीवन ही ले लीजिए। Elijah, one of the greatest prophets of all time. और एलाइजा जो कि सब नबियों में एक बहुत बड़ा नाम है, उसके साथ क्या हुआ? After doing so many miracles, और इतने ढेर सारे आश्चर्य कर्म करने के बाद he faced a threat from a woman, Isabel. और इजबेल जो थी स्त्री से, उससे Jezebel. उसको जेजबेल के स्त्री से उसको एक धमकी मिली। Jezebel said, I will cut off your head. और उसने कहा कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। So he went and sat under a broom tree तो वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया and said, Lord, I have had enough. Take my life away. और उसने कहा कि अब मेरे साथ बहुत हो गया, अब मेरा जीवन ही आप ले लीजिए। He was so depressed that he wanted to die. और इतना ज्यादा वो दुखी हो चुका था कि वो तो मरना चाहता था। You know, Jonah was so depressed when God did not do things at the way he expected. और योना भी बहुत दुखी हो गया था, मायूस हो गया था जब परमेश्वर ने वो सब नहीं किया जैसे वो सोच रहा था। He also was so depressed and said, Lord, take my life away. इतना मायूस हो गया था, उसने भी कहा परमेश्वर मेरा जीवन आप ले लीजिए। And David went through the depression when he committed sin against Bathsheba. और बत्शेबा के साथ पाप करने के बाद दाऊद भी उसी मायूसी से गुजरा था। There are so many other people, Jeremiah, और बहुत से लोग हैं, यिर्मयाह भी उसमें है, Nehemiah, and Ezekiel, so on. नहमाया भी है, एजेकियल भी है, इतने सारे लोग हैं। So God's children, servants, they are all God's children, servants of God, great prophets. They also went through the situation of discouragement and depression. तो ये सारे परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के सेवक, ये भी इन सारी मायूसी, दुखी, इन सब पलों से होके गुजरे। Now, when a person goes through depression or depression, there are almost two reasons for that. और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के दुखी अनुभव से
दुखद और मायूसी से गुजरता है, तो दो कारण इसके हो सकते हैं। Number one, the things did not go the way we expected. पहली बात तो ये कि जैसे हमने अपेक्षा करी थी वैसे सारी बातें नहीं हुई, Or we believe God did not answer my prayer the way I wanted it. और जैसे मैं चाहता था उस प्रकार से मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिला। The second reason for depression is sin in our lives. और दूसरा कारण हो सकता है हमारे जीवन का पाप। There was a problem with David when he went through depression. It was a sin in his life that made him so depressed. ये दाऊद की समस्या थी, ये उसके जीवन में जो पाप था उससे वो इतना मायूस हो गया था। Sin can make people depressed. जो पापमय जीवन है वो लोगों को व्याकुल मायूस कर सकता है। Today we are going to look at a person who was so depressed. आज हम देखना चाहते हैं एक व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा मायूस था। We will look at his life and learn two things. उसके जीवन को देखेंगे और हम दो बातें यहाँ पे सीखेंगे। Why he went through the depression क्यों वो इस मायूसी से गुजरा, and how he came out of depression. और फिर वो इस मायूसी से बाहर कैसे निकला, What did he do to come out of depression? और फिर उसने इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया। Now we saw about a lot of servants of God and the prophets. हमने देखा बहुत से जो परमेश्वर के जो सेवक हैं और जो नबी हैं, Sure, they went through depression, but all of them came out of depression. वो सब डिप्रेशन से गुजरे लेकिन उससे बाहर भी निकले। They did not just leave the Lord and walk away. ऐसा नहीं हुआ कि बस परमेश्वर को छोड़ के वो कहीं चले गए। They came out really stronger actually. वो वास्तव में और मजबूती से उस डिप्रेशन से बाहर निकले। So we study about this person. He also came out of the depression. तो इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि ये भी उस डिप्रेशन से बाहर निकला। Please turn with me to the psalm that we read today, Psalm 77. जो भजन आज पढ़ा गया 77, वो मेहरबानी से निकाल लीजिए। To understand this psalm, we should understand the person who wrote this psalm. और इस भजन को समझने के लिए जिस व्यक्ति ने लिखा है उसके बारे में समझना पड़ेगा। This psalm was written by a person called Asaph. और एसाफ नाम के व्यक्ति ने इस भजन को, Most of us do not even know him. हम में से बहुत लोग जो हैं वो तो इसको जानते ही नहीं हैं। Probably whenever we read the psalms, we might have noticed his name above the psalm written, saying that this psalm was written by Asaph. कभी-कभी जब हम भजन पढ़ते हैं तो शायद ये नाम हमको दिखाई पड़ता है कि हाँ शायद इस व्यक्ति ने ये भजन लिखा होगा। He was a musician. वो एक संगीतज्ञ था। He was appointed by David as a music director for the worship, for the temple worship. और मंदिर में भजन करने के लिए एक संगीतज्ञ के निर्देशन के लिए उसको दाऊद ने उसकी नियुक्ति करी थी। He was associating with Heman, the music director. और जो संगीत का जो निर्देशक था उसके साथ वो जुड़ा हुआ था। No, all the references are there, but we will not go through all the different references to take a lot of time. और सारे प्रसंग और संदर्भ मेरे पास हैं, लेकिन उसमें से हम सब में से होके नहीं गुजरेंगे। No, it is assumed he was only 20 years old when he went into the service of the tent. और ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर की सेवकाई में जाने के समय पे वो 20 वर्ष का ही था। Because his father Berechiah was the gatekeeper in the tent where the Ark of the Covenant is kept. और जहां पर वाचा का संदूक रखा हुआ था उस तंबू में, वहां पे उसका जो पिता था वो दरबान था। A person cannot work in the temple or the tabernacle beyond 50 years of old. और 50 वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में और वहां पे उस धार्मिक स्थल पे काम नहीं कर सकता था। So he was below 50 years. तो अवश्य वो 50 वर्ष के कम आयु का रहा होगा। And his son Esau must have been appointed at the age of 20 years as to serve as a musician in the temple. और जो आसाफ था उसका बेटा, उसको एक संगीतकार के रूप में वहां पे भजन करने के लिए नियुक्ति करी गई थी। Because below 20 years of the age, they were not allowed to serve in the tent. क्योंकि परमेश्वर के तंबू में 20 वर्ष के कम के आयु के लोगों को अनुमति नहीं थी सेवा करने की। So he entered in the service at the age of 20 years. तो मतलब परमेश्वर की सेवा में वो 20 वर्ष की आयु में वो शुरुआत करी। And he must have been a very, very talented musician. और उसमें बहुत सारी
रही होंगी एक संगीतकार के रूप में। He worked with the King David. दाऊद के साथ वो काम करता था। No, the King David wrote a lot of psalms, दाऊद ने खुद ही बहुत सारे भजन लिखे, and these people made music for those songs. और ये लोग जो थे उन भजनों के लिए संगीत प्रदान करते थे। In fact, Asaph wrote about 12 psalms as well. और असाफ ने 12 भजन भी लिखे। Psalm 50 भजन 50 and 73 to 83. और 73 से लेकर के 83 तक। All these psalms are written by Asaph. और ये सारे जो भजन हैं वो असाफ ने लिखे। Actually, he wrote more of the Bible than many of the New Testament writers and then some minor prophets. और उसने जो है वो जो दूसरे छोटे नबी हैं और जो नए नियम के लेखक हैं उससे कुछ ज्यादा भी उसने लिखा हुआ है। He was there during the time of David. वो दाऊद के समय में था। He was there during the time of Solomon. सुलेमान के समय में वो था। And he was there when Solomon built that glorious temple. और जब सुलेमान ने वो बहुत बड़ा परमेश्वर का मंदिर बनाया था तब भी वो and he was there as a musician in the temple. और उस परमेश्वर के मंदिर में वो संगीतकार के रूप में था। And he was there during his son Rehoboam as well. और रहोबाम उसके लड़के के समय में भी असाफ था। Now, as a musician, he must have been very, very close to David. और एक संगीतकार के रूप में वो दाऊद के बहुत नजदीकी रहा होगा। And David must have been a great hero for him. और शायद एक दाऊद जो है वो एक बहुत अच्छे नायक के रूप में उसके जीवन में रहा होगा। In fact, David was a hero to so many people during his time. People just loved him. और सत्य तो ये है कि एक महानायक के रूप में दाऊद अपने समय में था और लोग उसको एक नायक महानायक के रूप में देखते थे, उससे प्रेम करते थे। Then suddenly he saw his hero falling down, और फिर उसने देखा कि उसका ये जो नायक है वो तो गिर गया, committing adultery and murder. और व्यभिचार और उसके बाद हत्या करी उसने। He saw the fight between David and his son Absalom. अबसलोम और अपने बेटे और दाऊद के बीच में उसने लड़ाई होते हुए देखी। Then he saw his son Solomon come into power. फिर देखा कि सुलेमान उसका लड़का वो आया गद्दी पर। And Asaph must have been thrilled to see the temple Solomon was building. और एसाफ को बड़ा अच्छा लगा होगा कि भाई सुलेमान जो है अब वो परमेश्वर का भवन बना रहा है। And according to him, that it was a golden year of Israel. और उसके अनुसार ये एक स्वर्ण समय था इजराइल के लिए। He must almost felt like that he is standing on the top of the world. और उसको तो ऐसा लगा हो कि वो दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा हुआ है। He was working in the temple of the Lord which Solomon built. क्योंकि वो अब परमेश्वर के मंदिर में काम कर रहा है जो सुलेमान ने बनाया। Then he suddenly saw Solomon falling down. फिर उसने देखा कि सुलेमान भी गिर रहा है। Solomon turned his back on God. सुलेमान ने परमेश्वर से अपना मुंह मोड़ लिया था and started worshipping idols and all the foreign gods. और वो मूर्तियों की पूजा करने लगा और विदेशी देवी देवताओं की पूजा करने लगा। He saw how Solomon suppressed the people and taxed them more and more for all his project that he came up with. और उसने ये देखा कि सुलेमान कैसे लोगों को अब दबा रहा है, कैसे उन पे अधिक से अधिक कर लगा रहा है ताकि मंदिर के लिए और इन सारे जो उसके प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए पैसा आ सके। Now he saw his hero David fall down. उसने देखा जो उसका नायक दाऊद वो कैसे गिरा। And then he saw his son Solomon become a wicked man. और फिर उसने देखा सुलेमान भी कैसे एक दुष्ट व्यक्ति बनता जा रहा था। And as a old man, he saw the kingdom was divided into two during Solomon's son Rehoboam's time. और फिर एक बूढ़े व्यक्ति के जब बुढ़ापे में आ गया तो देखा कि वो पूरा राज्य रहोबाम के समय में दो टुकड़ों में बट गया। And he was also there when Shishak, king of Egypt, invaded Israel and took away all the treasuries. और जब उसने वो उस समय में था जब शिशाक जो मिस्र का राजा था उसने हमला बोल दिया और सारी जो यहाँ का सामान था, सोना चांदी था, वस्तुएं थी, वो ले गया। Not only Shishak took the treasures of palace, he also took all the treasures from the temple. और न केवल ये राजा जो मिस्र का था वो सारी मूल्यवान चीजें उस देश से ले गया, लेकिन परमेश्वर के मंदिर से भी
वो सारी मूल्यवान वस्तुओं को ले गया। Yeah, he also took all the huge golden shield that Solomon had made. और जितने भी सोने की अच्छी जो बड़ी चीजें थी जो सुलेमान ने बनाई थी वो भी वो ले गया। Now, during that war, Esau must have seen many of his relatives being killed in the temple of the Lord because the treasures were taken from there. और इस लड़ाई में असाफ ने अपने बहुत से रिश्तेदारों को देखा होगा, उनकी मृत्यु को देखा होगा, क्योंकि कैसे जब मंदिर में से सब वो चुरा के हमला करके लेके जा रहे थे, देखा होगा उसने। And in front of his eyes, before his eyes, he saw his countries being destroyed. और उसने अपनी आंखों के सामने अपने देश को इस प्रकार से गिरते हुए देखा। And he went through all these things. और इन सारी बातों से वो गुजरा। And God doesn't seems to care about it. और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर को इस पूरी परिस्थिति की कोई चिंता नहीं है। He was disillusioned and so depressed man. और इतना ज्यादा वो विचारों में व्याकुल था, खोया हुआ था, और वो बहुत ज्यादा मायूस था। During this time, he wrote this Psalm 77. और इस समय में उसने ये भजन 77 को लिखा। Actually, this Psalm was written when Shishak, the king of Egypt, invaded Israel. ये लिखा जब गया था, जब वो इजराइल का राजा शिशक, जब उसने हमला बोला था इजराइल पे, ये तब लिखा गया था। And he was so depressed because he thought God has forgotten them. और वो इतना ज्यादा मायूस हो गया था, उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर उनको भूल गया है। He thought God has rejected them. उसको लगा कि परमेश्वर ने उनका इनकार कर दिया है। He thought God's love has vanished. उसको लगा कि परमेश्वर का प्रेम जो है अब वो जा चुका है। He thought God was not merciful. उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर जो है अब वो करुणा करने वाला परमेश्वर नहीं है। And God was not compassionate. और परमेश्वर अब वो करुणा करने वाला परमेश्वर नहीं है। When we go through discouragement and depression, sometimes this is what we feel. और जब हम डिप्रेशन से या मायूसी से गुजरते हैं तो ऐसा हमको भी महसूस होता है। Sometimes we feel God has forgotten me. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमको भूल गए हैं। Sometimes we feel God is not with me. कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। And that will give more depression than to bring us out of it. और इससे हमको और ज्यादा मायूसी होती है कि हम उससे निकल नहीं पाते। So he went through depression. You know why he went through depression? Now we will see how he came out of the depression. तो अभी हमने देखा कि क्या कारण थे जिनके कारण वजह से वो इतना मायूसी में चला गया था। अब हम देखेंगे कि उन मायूसियों से वो बाहर कैसे निकला। The first thing he did was he sought the Lord. जो पहला काम उसने किया कि उसने परमेश्वर को ढूंढा। Someone read please verse 2. दूसरा पद पढ़ दीजिए। In the day of my trouble, I seek the Lord. In the night, my hand is stretched out without wearying. My soul refuses to be comforted. संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई नहीं। Yeah. When I was in distress, I sought the Lord. जब मैं परेशानी में, संकट में था, तब मैंने परमेश्वर को ढूंढा। The first thing a depressed man should do is to seek the Lord. तो जो व्यक्ति मायूसी में है उसको पहला काम करना है कि वो परमेश्वर को ढूंढे। In today's world, आज के समय में very often people want to divert their mind from the real issue, so they try to do a lot of different things. आज के समय में जो लोग हैं वो जो असली मुद्दा है उससे अब ध्यान हटाने के लिए कुछ दूसरे काम करने लगते हैं। They divert attention into shopping, eating, and gambling and alcohol. और कुछ लोग जो हैं वो खरीदारी करने लगते हैं, कुछ लोग जो है खाने पीने में अपना समय ध्यान बटाते हैं, कुछ लोग जुए में निकालते हैं, कुछ लोग शराब में अपने ध्यान को बांट देते हैं। Some people even go and sit in the movie theater just to come out of depression, just to take their divert their attention to somewhere else. और कुछ लोग जाके सिनेमा घरों में बैठ जाते हैं बस इसलिए ताकि उनका जो ध्यान है वो उस मुद्दे पे ना जाए, वहां से कहीं और चला जाए। Now let me tell you something. Movie is the last thing you will watch when you are depressed. और मैं बता दूं कि जब आप इतने मायूस हैं तो कोई फिल्म है वो एक आखिरी चीज है जो आप देखेंगे। And I'm not actually saying you don't go and watch movie and all. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मूवी ना देखें।
And but definitely don't go when you are so sad, when you are discouraged, when you are depressed. लेकिन जब आप बहुत मायूस हैं, बहुत उदास हैं, तब मत देखिए, मत जाइए। But if you don't watch movie at all, it's really good. और नहीं देखते हैं तो और ही अच्छा है। So because when you watch any movie, you go through lot of unnecessary emotions. क्योंकि जब आप ऐसा कुछ देखते हैं तो आप बहुत अनावश्यक भावनाओं से गुजरते हैं। You are already depressed and discouraged, आप तो पहले से ही बहुत ज्यादा मायूस हैं and you go and sit there and take more of those unnecessary emotions into yourself. और फिर वहां बैठ के और अनावश्यक भावनाएं जो हैं वो आपके अंदर आने लगती हैं। And when you come out, in fact, you are more depressed than before you were. और जब बाहर निकलते हैं तो शायद पहले से और ज्यादा मायूस होकर निकलते हैं। When you are depressed, the only place to go is to God and cry out to Him. और इसलिए जब मायूस होते हैं तो एक ही स्थान है, वो परमेश्वर का स्थान है कि जाके हम वहां पे उसके सामने रो सकते हैं। Stand on your knee before Him and cry out to Him. और खड़े होके घुटनों पे भी आप उस पे सामने रो सकते हैं। Fill your mind with His thoughts. विचारों से अपने आप को भर सकते हैं। Don't fill your mind with a lot of unnecessary things that doesn't help you at all in any way. और अनावश्यक चीजों से, बातों से अपने मन को मत भरिए जिससे आपको कोई सहायता नहीं मिलने वाली। The first thing Asaph did was to seek the Lord. असफ ने जो पहला काम किया वो ये था कि उसने परमेश्वर को ढूंढा। No, he had a lot of questions. उसके पास बहुत से सवाल थे Lot of questions whether God has rejected him, rejected the nation. कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है, देश को छोड़ दिया है। And he had questioned whether God was really loving towards the nation. और उसका सवाल था कि परमेश्वर क्या अभी भी इजराइल देश को प्यार करता है कि नहीं करता है। But he never had a question on the existence of God. लेकिन परमेश्वर के अस्तित्व पर उसका कभी कोई सवाल नहीं था। He never asked the question, is God there? उसने ये नहीं कभी पूछा कि क्या परमेश्वर है भी कि नहीं। No, you may have doubts about the way God works in your life. हो सकता है आपके जीवन में कि परमेश्वर पता नहीं कैसे मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। You may have doubts about whether God will answer my particular prayer or not. आपके जीवन में संदेह हो सकता है कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दें या ना दें। But you may have so many other doubts. लेकिन और भी आपके बहुत से संदेह हो सकते हैं। But one of the two things you should never forget is, लेकिन दो बातें जो कभी ना भूलें वो ये, you should never doubt God in the existence of God. लेकिन परमेश्वर के अस्तित्व पर कभी संदेह ना करें। And the second thing, you should never doubt that God is with you. और दूसरा संदेह परमेश्वर आपके साथ है। God always is, I will never leave you nor forsake you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। You know, yesterday afternoon, when I was struggling, I went on my knees to pray. और कल दोपहर में जब मैं संघर्ष कर रहा था तो मैंने अपने घुटनों पे मैंने प्रार्थना करी। While I was praying, suddenly this word came to my mind again, I will never leave you nor forsake you. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो ये वचन मेरे मन में आया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। I have read this verse many times. मैंने इस वचन को बहुत बार पढ़ रखा है। God speaking to me this word many times. परमेश्वर ने मुझसे इस वचन से बहुत कई बार But बातचीत करी। yesterday when I was praying, it kind of gave me a new meaning for the whole लेकिन कल verse. मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक नया विचार मेरे पास एकदम से आया। When God says, I will never leave you, जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, indirectly he says, I am with you always. तो अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। He's not saying I am sitting somewhere, wherever you are, I will take care of you. He's not saying that I will take care of you. He's not saying that. वो ये नहीं कह रहा है कि तुम जहां पर, मैं कहीं और हूं लेकिन तुम जहां पर भी मैं वहां से तुम्हारा ध्यान रख लूंगा, ये नहीं कह रहा है। He says, I am with you, I am in your life, I am very close to you. वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बहुत समीप हूं And I will never leave you. That's what he says. और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ये वो कहता है। So don't ever doubt our God exists and he is with us. कभी संदेह ना करें कि हमारा परमेश्वर का अस्तित्व है कि नहीं और वो हमारे साथ है या नहीं। The moment you doubt that fact, और जब भी हम इस सत्य पे हम संदेह करते हैं you will have nowhere to go. तो फिर आपके पास कोई और स्थान नहीं बचेगा जाने का। There's no other place if you doubt him. अगर परमेश्वर पे संदेह करेंगे तो और कोई स्थान नहीं है हमारे पास जाने का। No, Asaph knew God was with him. ऐसा आपको मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ है। He knew he was in control.
उसको मालूम था कि परमेश्वर नियंत्रण में है, He knew everything that is, God knew everything that was happening there. उसको ये मालूम था कि परमेश्वर को मालूम है सब कुछ जो हो रहा है, So he went to God. तो वो परमेश्वर के पास गया, He did not go anywhere else. वो कहीं और नहीं गया। And second thing he did was, जो दूसरी बात उसने करी वो ये, he asked, he was honest with God. वो परमेश्वर के साथ उसने इसको बहुत सच्चाई से इस बात को कहा। Someone read please verses 7 to 9, verses 7 to 9. If the सात Lord, से if the Lord rejects forever, will he never show his favor again? Has his unfailing love vanished forever? Has his promise failed for all time? Has God forgotten to be merciful? Has he in anger withheld his compassion? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? No, he did not pretend to be very happy man in front of God. उसने ऐसा अपने आप को झूठा मुखौटा लगा के प्रस्तुत नहीं किया कि मैं तो बहुत खुश हूँ, He went to God with so much honesty and asked all these hard questions. और एक सच्चे मन से वो परमेश्वर के पास गया और ये सारे मुश्किल सवालों के साथ गया। He did not show that he was so happy, but cried out before God. उसने ये नहीं दिखाया कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, लेकिन वो रोया परमेश्वर के सामने। You know, the only place you can cry very freely is in the presence of God. और जहां पर आप खुल के रो सकते हैं वो है परमेश्वर की उपस्थिति में। In front of other people, you may not be able to do it. और लोगों के सामने आप शायद ना कर पाए, Sometimes, though we sometimes do with very closely people. कभी कभी मुमकिन भी है, कोई अगर हमारे बहुत समीप है तो वो भी मुमकिन है। But before God, without any fear, without any shame, you can cry before God. लेकिन परमेश्वर के सामने बगैर किसी लज्जा के हम उसके सामने रो सकते हैं। And this great man went before God and cried out to God. और ये महान व्यक्ति जो था वो परमेश्वर के सामने गया और रोया। And it says he stretched out his untiring hands. और उसने अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उसने हाथों को रख दिया। No, he was not tired of praying. सॉरी, He was not tired of praying. और वो प्रार्थना से करते हुए वो थका नहीं था, Because he knew God was listening to his prayer. क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहे थे। You know, when you are depressed, that's a thing we have to do is go to God, cry out to him, and stretch out your hand and pray to him. तो जब कभी ऐसे मायूसी में हो तो परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें और हाथ फैला के उससे मांगे, प्रार्थना करें। Because God is always listening to your prayer. क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। He says, I raised my untiring hands. और उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूं, मैं अपने हाथों को आपके सामने उठाता हूं। He was not tired. वो थका नहीं था। You know, the last week I was talking to Bijoy. पिछले हफ्ते में विजय भाई से बात कर रहा था। Now we all know they both went through the COVID problem. हम जानते हैं कि वो कोविड बीमारी से वो दोनों भी ग्रस्त थे। And they frightened me more than they frightened me. And of course, Sushila frightened me also. But Bijoy and JC frightened me so much also. और जब ये हुआ तो भाई और जेसी उनके कारण मैं बहुत डर गया, सुशीला बहन भी उससे, बट विजय और जेसी का जब पता लगा तो मैं बहुत घबरा गया था। Because he was not willing to go for any test or anything. He said, just we will be okay, we will be at home. क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम किसी टेस्ट में नहीं कराने जाएंगे, हम घर पे ही रहेंगे। That day when I was talking to him, he said, one day at 1 o'clock in the night, he went on his knees till 4 o'clock or 5 o'clock. तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन ऐसा समय आया उस बीच में कि जब रात के 1 बजे वो प्रार्थना के लिए घुटनों पर गए और सुबह 4 बजे तक वो प्रार्थना में रहे। You can see the result. उसका नतीजा आप देख सकते हैं। They are completely out because God brought them out. और बिल्कुल Ashish, your audio is gone. ऑडियो इज गॉन। Yeah, now it's okay. Yeah. Okay. Yeah. He says, I stretch out my untiring hands. That's what he says. और असफ कह रहा है कि मैंने अपने बिना थके मैंने अपने हाथों को परमेश्वर के सामने फैलाया हुआ है।
So when we go through depression and discouragement, prayer takes the first place in our life. तो जब हम डिप्रेशन से और मायूसी से गुजरते हैं तो प्रार्थना हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान ले लेती है। Then he has lot of hard questions to God. और फिर उसके पास बहुत मुश्किल सवाल भी थे परमेश्वर के सामने पूछने के लिए। You know, the question he asked is very kind of very strong and comforting questions. जो सवाल उसने पूछे बड़े सख्त सवाल थे, लेकिन उन सवालों से आपको तसल्ली भी मिलती है। Now he says, have you forgotten me? Have you rejected me forever? वो पूरा कह रहा है कि क्या तूने मुझे हमेशा के लिए त्याग दिया है? Will you never show your mercy? क्या तू कभी भी अपनी मुझे करुणा नहीं दिखाएगा? Have your unfailing love vanished forever? क्या तेरा जो प्रेम है, असीम प्रेम है, क्या वो चला गया है मेरे जीवन से? Has your promise failed forever? जो आपकी वाचा थी, जो वायदा था, क्या वो असफल हो गया है? Have you forgotten to be merciful? क्या आप करुणा करना भूल गए हैं? Are you withholding your compassion from our life? और मेरे जीवन से आपने क्या करुणा को रोक दिया है? No, when you read all these questions, you feel so comforted because whatever he says sometimes comes into our mind as well. और जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमें इससे तसल्ली मिलती है, क्योंकि जो कुछ भी उसके जीवन में गुजरा, जो दिख रहा है, वो हमारे जीवनों में भी कभी-कभी ऐसे हम गुजरते हैं। You know, one of the verses which really comforts me all the time I go through this kind of questions is और एक वचन जो मुझे बहुत तसल्ली, जिससे सांत्वना मिलती है जब ऐसे सवाल आते हैं, वो वचन ये है। Someone read please Isaiah chapter 41 verses 9 and 10. Isaiah 41 verses 9 and 10. This is my favorite verse. Isaiah 41 verses 9 and 10. I took you from the ends of the earth. From its farthest corners I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and I have not rejected you. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। He says, I took you from the ends of the earth. और कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया के इधर उधर से कोनों से मैं तुम्हें लेके आया हूँ। I said, you are my servant. और मैंने कहा कि तुम मेरे सेवक हो। I have not rejected you. मैंने तुम्हें नहीं त्यागा है। God never rejects us. परमेश्वर हमें कभी भी त्यागता नहीं है। I have not rejected you, so do not fear. मैंने तुम्हें नहीं त्यागा है, इसलिए मत डर, For I am with you. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। You know, it's such a comforting verse God has given to us that I will never reject you. I am always with you. Do not fear. और ये जो वचन है उससे बहुत तसल्ली और सांत्वना मिलती है कि मैंने तुझे नहीं त्यागा है, मैं तेरे साथ हूँ। So these questions sometimes come into our mind. Whatever question that Asaph asked comes into your mind also. और इस अक्सर हम देखते हैं कि जो सवाल असाफ के मन में से होके गुजरे, वही हमारे जीवनों में, मनों में भी आते हैं। He just poured out everything to God. हर चीज उसने परमेश्वर के सामने उंडेल दी। His anger, his frustration, everything he poured before God. जो उसका जो उदासी थी, जो उसकी नाराजगी थी, जो व्याकुलता थी, सब उसने प्रभु के सामने रख दी। As he said, God is you can cry only before God without any hesitation. जैसा मैंने कहा कि बगैर किसी हिचकिचाहट के आप परमेश्वर के सामने रो सकते हैं खुल के। And you can pour out your frustration just before God, the way we pour out we cry to Him. और अपना सारी व्याकुलता, परेशानियां, दुख परमेश्वर के सामने खुल के हम रख सकते हैं। No, be open to God when you go before God to pray. जब प्रभु के सामने प्रार्थना करने जाते हैं तो खुले मन से जाइए। Don't pretend to be so satisfied and happy man when you are struggling inside. और अगर आप अंदर से संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसा मत दिखाइए कि जैसे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं। That is very dangerous. ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। Because God
hates hypocrisy. क्योंकि परमेश्वर जो है उसको घृणा आती है जब लोग दोगले मन से जाते हैं। So be transparent to God and pour out whatever is in your heart. तो परमेश्वर के सामने पारदर्शी बन के जाइए, जो भी आपके हृदय में उसके सामने रख दीजिए। That's what Asaph did. यही असाफ ने किया। The third thing he did was तीसरी बात जो उसने करी हुई है, he redirected his thoughts. उसने अपने विचारों को दोबारा से एक दिशा दी। He redirected them to his former ways, former blessings. जो उसके पहले की आशीषें थी, Former जो उसके blessings. पहले के जो उसके तरीके थे, उस दिशा में उसने अपने विचारों को दोबारा केंद्रित किया। He deliberately focused his eyes on the blessings the Lord gave him, Lord gave his people. उसने जानबूझ के अपने मन को, विचारों को केंद्रित किया उन आशीषों पे, उन बातों पे जो परमेश्वर कर चुका था। Somebody please verses 10 and 11. Then I thought, to this I will appeal, the years of the right hand of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will meditate on all your works and consider all your mighty deeds. मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। So these miracles he was talking about is not done in his lifetime. ये जो आश्चर्य कर्म की बात वो कर रहा है, वो उसके जीवन काल के नहीं है। He was talking about the miracles God did long ago in Egypt. ये उन आश्चर्य कर्मों की बात कर रहा है जो बहुत समय पहले मिस्र देश में हुए थे। And then how God took care of them during the travel to Canaan. और जब उनकी यात्रा थी कनान देश वाली, तो कैसे परमेश्वर ने उनका ध्यान रखा था। He meditated upon those facts and to reassure himself God is there with him. तो उसने उन पुरानी बातों पे अपने विचारों को लगाया ताकि उसको दोबारा से ये भरोसा आने पाए कि परमेश्वर उनके साथ है। So how did he know what happened many years ago? तो उसको कैसे मालूम था कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था? Because he read the scriptures and meditated on them. क्योंकि उसने वचनों को, ग्रंथों को पढ़ा था और उस पे वो ध्यान करता था। He read the scriptures and knew God was working with them. The same God is there with him today. वचन को पढ़ के वो जानता था कि परमेश्वर उन लोगों के साथ, उन देश के साथ परमेश्वर साथ में मिलकर काम कर रहा है। No, it is very important to read God's word and meditate upon God's word when you go through discouragement and depression. और विशेष रीति से जब आप इस गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर के उस वक्त वचन को पढ़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। Because when you read God's word, God speaks to you very closely. लेकिन जब इसलिए ताकि जब आप वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर आपको बहुत समीपता से आपसे बातचीत करता है। You see so many things God has done for so many other people on the earth. आप देखते हैं परमेश्वर ने क्या क्या बातें, चीजें कर रखी हैं दूसरे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर। And you will realize that God is with you always. और आपको इस बात का एहसास होगा कि परमेश्वर सदैव आपके साथ है। So reading God's word and meditating on God's word is very important when you are discouraged or depressed. और इसलिए जब कभी आप मायूस हैं तो परमेश्वर का वचन पढ़ना, उस पे ध्यान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। That will give us an assurance, my God is a great God. और इससे आपको एक भरोसा आएगा कि मेरा जो परमेश्वर है वो एक महान परमेश्वर है। That will give you the assurance saying that my God is loving, gracious and compassionate. और ये एक भरोसा हमारे अंदर आएगा कि हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला और दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। And it will also give assurance, my God is a living God. और ये भी भरोसा आएगा कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And my God is the creator God. और मेरा परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। So it's very important to read God's word and meditate upon it. इसलिए बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उस पर ध्यान दें। No, he went to God. वो परमेश्वर के पास गया। He cried out to God. उसने जाके परमेश्वर से वो रोया। And remembered all that God did in the olden days. और उसने याद किया वो सारी बातें जो परमेश्वर ने पहले जमाने में करी। Because he read the scriptures and meditated upon them. क्योंकि उसने वचन को पढ़ा था और उस पर ध्यान भी किया। And someone read please verse 13. Your Verse ways, 30. O God, are holy. What God is so great as our God? हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है।
कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? Yes. No one. He came to realization there is no one equal to him. और उसने इस बात को देखा कि परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है, None besides him. उसके None beside him. परमेश्वर के बराबर कोई नहीं है। No, he started the psalm with so much of sadness and crying. जब उसने इस भजन को शुरू किया तो बहुत ज्यादा दुखी भाव से शुरू किया था And he was so distressed. और इतना ज्यादा वो व्याकुल था। But when he finishes his psalm, he finishes with so much of joy in his heart. लेकिन जब उस भजन को समाप्त करता है तो आनंद उसके जीवन में दिखाई पड़ता है, Joy which came through the faith. और वो आनंद जो विश्वास के साथ आया। Read, someone read please verse 19. Verse 19. Your path led, Yeah. your path led through the sea, your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। No, Lord, you led the Israelites through the water. और परमेश्वर इस्राएलियों को आपने निकाला, Your footprints were not seen. लेकिन आपके वहां पैरों के चिन्ह नहीं दिखे, But we knew you led them. लेकिन हमको मालूम है कि आपने उनका अगुवाई करी। She says, same way, Lord, I am not able to see you. इसी प्रकार से परमेश्वर मैं आपको नहीं देख पाता, I am not able to see you in my life, मैं जीवन में आपको नहीं देख पा रहा हूँ अपने, but I know you are leading me. लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा मार्गदर्शन आप ही कर रहे हैं। No, very often we do not know why God is leading this way, but we should realize God is leading us. कई बार हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों परमेश्वर इस प्रकार से हमारा अगुवाई कर रहा है, लेकिन इस बात को जान लें कि परमेश्वर ही हमारी अगुवाई कर रहा है। Very often we may not be able to see God directly in our life, अक्सर हम परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में ना देख पाए, but we should have an assurance and faith God is leading me and God is with me each and every moment. लेकिन ये भरोसा हमारे अंदर हमेशा रहे कि परमेश्वर हर क्षण हमारी अगुवाई कर रहा है। We may not be able to see his footprints, और इसके शायद पदचिन्ह हमको ना दिखे, but God is leading us all the time. लेकिन परमेश्वर सदैव हमारी अगुवाई करता है। You know, it is a very, very great statement of faith. और ये विश्वास का एक बहुत बड़ा वाक्य है। Lord, I am not able to see you, but I know you are there with me. परमेश्वर मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। You know, remember what did Job said? आपको याद है कि अय्यूब ने क्या कहा था? I go to north, I am not able to see you. मैं जो हूँ उत्तर में जाऊं तो मैं नहीं देख पाता आपको, South, I cannot see you. और दक्षिण में जाऊं तो मैं नहीं देख पाता, East and west, I am not able to see you. और पूरा पश्चिम में जाऊं तो मैं आपको नहीं देख पाता। But you know the way I take. लेकिन जिस रास्ते से मैं आया हूं वो रास्ता तुझे मालूम है। I may not be able to see God's working in me all the time, but I know God is working. हम सदैव शायद परमेश्वर को ना देख पाऊं कि वो मेरे जीवन में कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो मुझे देखता है, वो मेरे सब बातों को जानता है। So Asaph did 3 things असाफ ने 3 बातें करी to come out of depression. इस मायूसी से निकलने के लिए 3 बातें करी। Number 1, he sought the Lord पहली बात, उसने परमेश्वर को ढूंढा, and he was honest with God. परमेश्वर के साथ वो सच्चाई से प्रस्तुत आया। He redirected his thoughts towards God and his scriptures. और उसने वचन की ओर और परमेश्वर की ओर दोबारा से अपने विचारों को केंद्रित किया, and towards the great miracles that God did long back. और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर अतीत में कर चुका है उस पर उसने ध्यान लगाया। In the end, he tells God, और अंत में वो परमेश्वर से कहता है, Lord, I am not able to see you in my life, परमेश्वर मैं आपको अपने जीवन में देख नहीं पा रहा हूँ, but I know you are there in my life. लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे जीवन में हैं। Whatever may happen in our life, चाहे हमारे जीवन में जो भी होता रहे, we should always remember God is with us and God is in control. हमेशा इस बात को याद रखें, जानने की परमेश्वर हमारे साथ है और हर बात परमेश्वर के नियंत्रण में है। We all go through sometime discouragement and depression, और हम में से सब लोग कभी न कभी इस मायूसी से गुजरते हैं, but our eyes should be always focused on God. लेकिन हमारी आंखें हमेशा परमेश्वर की ओर ही लगी रहें। Always seeking, हमेशा उसको ढूंढें, pour out your heart to Him, अपना हृदय उसके सामने उंडेल दें,
read his word and meditate upon it. उसके वचन को पढ़ें और वचन पे ध्यान करें। In any situation, remember God is with us all the हर time. परिस्थिति में याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we thank you for your word that has come to us this morning in such simple words, but yet so powerfully. We धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का वचन एक सरल शब्दों में लेकिन बहुत ही सामर्थ्य के साथ आपने हमारे जीवन में आज हमको बताया है। And Lord, we can truly identify ourselves with the psalmist in so many ways. प्रभु जी, हम अपनी परिस्थितियों को इस भजन लिखने वाले के परिस्थितियों के साथ मिलता जुलता अक्सर देखते हैं। Lord, this morning we want to admit the fact that many times we think the same way the psalmist has thought, but we don't do what he did. परमेश्वर, कई बार हम लोग सोचते तो हैं जैसा इस भजन वाले के दिमाग में सारे विचार आ रहे थे, लेकिन जैसा इसने किया वैसा हम करते नहीं हैं। Help us, Lord, this morning to uh, to follow the direction, the process, the spiritual process which the psalmist also took under your direction. परमेश्वर, जो बात इस भजन लिखने वाले असाफ ने अपने जीवन में करी, आत्मिक जो उसने कार्य को किया आपके निर्देशन में, प्रभु वो उसी कार्य को हम भी करने पाए। Help us, Lord, to seek you. Help us, Lord, to come to you with truthfulness and to meditate on your word and to focus on you. प्रभु जी, हम भी आपको ढूंढें और सच्चाई के साथ आपके सामने आए, सारी भावनाओं के साथ, सारे सवालों के साथ आपके सामने आए, सवालों को ढूंढें, आपसे बातचीत करें परमेश्वर, और ये जान लें कि वचन में के द्वारा और आप हमसे बातचीत करते हैं और आप हमें कभी नहीं छोड़ते। Lord, that you are always with us. As we are ending this meeting, Lord, help us to go out with knowing the truth that you are also with us. प्रभु जी, जब हम इस मीटिंग से बाहर जाते हैं तो हम इस बात, सच्चाई को अपने हृदयों में इस बात को जान लें कि आप सदैव हमारे साथ रहते हैं। We ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. Amen.